पेट्रोल से अपनी इकोनॉमी चलती है, तो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वर्ल्ड में, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी यूजिंग पेट्रोल। मुझे लगा ये यहाँ तो प्याज से चलती है इकोनॉमी, प्याज टमाटर। बट प्याज भी इधर उधर करने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए ना। स्मार्ट तो द मॉनिकर फॉर बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड। मॉनिकर नया वर्ड सीखा मैंने। गाइस, हम आपको क्रिप्टो के साथ इंग्लिश भी सिखाते हैं, ठीक है? सुबह सुबह इंग्लिश लेसन्स फॉर ऑल द जी मैट enthusiasts, GRE, प्लीज टेक नोट्स। सुबह 9 बजे। Shit. Arey guys, I'm so sorry for being late here. The star is here. Sorry guys. Am I late? You know that already. Half an hour यार. It's a morning show. Indian standard time. चल ठीक है, Indian Standard Time से तो I'm at least 5 minutes before. At least better than someone here. Oh yeah. यार second episode में एक आदमी कम हो गया. Oh shit, we are rolling. Welcome to That Crypto Show, friends. By the way, what happened to Shubham? यार हाँ, so before we start about like this entire crypto thing, blockchain, let's decipher this enigma called Shubham. Shubham है क्या यार? यहाँ मैं भीख मांग रहा था फर्स्ट एपिसोड में, सब्सक्राइब, यहाँ हमारा पैनलिस्ट ही गायब हो रहा है। और मैं फिर आया हूँ बॉम्बे से, ये बैंगलोर से नहीं आ पाया। बताओ। सरप्राइजिंग। I've like बट heard. तुम लोगों को तो पता होगा ना कुछ क्या क्या चल क्या रहा Yeah, last I checked, he had gone to play football है। एट नाइट। at night ओह, नाइट फुटबॉल। without floodlights, अंधेरे में पता नहीं क्या खेल रहा था। Never came back from there. Yeah. Either that boy has never shown me the light on a profitable portfolio. Now I know why. This person likes to play football in the dark without floodlights. I should have seen that coming. But yeah, he'll be missed for today's episode. Yeah. From what I check, it's not a matter of heart, mind, but there was a lot of spike in markets yesterday. या Yeah. And that brings us to the first segment. And boys, happy to have you here, hodlers. I hope out of the first set of 1,000 plus people who watched, there are 1,000, no? Yeah. Surprisingly, bro. That's surprisingly, bro. No, guys. एक ही बंदा मान ले काफी है. But yeah, with this entire thing around ETH, ETF, market spiking, US government going batshit crazy on crypto. Okay, there has been a lot of momentum in the market last week. I think more so than IPL. So let's get on to it, man. Okay, Like, first of all, nothing beats IPL, bro. Nothing beats IPL, but crypto is a close second today. Because last 2 weeks have been Yeah. crazy, like in terms of the number of things that have happened. उनको cover करने में I think पूरा हमारा like एक घंटा चल सकता है easily. you are in luck, bro. मैं पर time ही तो है. surprisingly, we are all early to office today, so we have enough time. Yeah. तो मतलब IPL से जैसे कंपेयर करो ना, वैसे ही व्यूअरशिप बढ़ गया है क्रिप्टो का। आपके दोस्त वगैरह भी फिर से थोड़े दिन में आके पूछने लगेंगे आई थिंक कि क्या चल रहा है क्रिप्टो में। एंड यूएस में तो बेसिकली इट्स गॉटन मेन स्ट्रीम इन पॉलिटिक्स, Right. which is a huge thing. Like, and एकदम ऐसे 180 जो टर्न होता है ईथ के मामले में, तो वही हुआ है कि एसईसी मना कर रहा था एंड अचानक से लाइक एक हफ्ता पहले दे लाइक ओके रीफाइल योर लाइक यू नो एप्लीकेशंस, और उसके बाद फिर अप्रूव हो गए ईथ ETFs have been approved. Yeah, but Parth, do you think like because unlike BTC, where you know this market has this sentimentality, कि this thing is about to come, is around the corner. ETH just had a complete U-turn of a story. Right. People were expecting a negative decision. Yes. Okay, and then SEC taking a U-turn, and then the US government like passing these two momentous bills in support of cryptocurrency. Do you think there was some like, I think for a lack of a better word? See, it's all politics. At the end of the day, it comes to politics. Like ऐसे एंड हुआ सब शुरू ट्रम्प के NFT इवेंट के बाद। तो ट्रम्प ने जब लास्ट बुल मार्केट था, NFTs वर वेरी क्रेजी, सो ही हैंडेड आउट NFTs टू अ लॉट ऑफ पीपल। एंड बेसिकली अगर आपके पास ट्रम्प की NFT है तो यू आर इनवाइटेड फॉर अ डिनर विथ ट्रम्प At his Trump golf course. एट हिज, वही उनका कौन सा है, फ्लोरिडा में कोई गोल्फ रिजॉर्ट है, वहाँ पे बुलाया, सब लोग गए। एंड ट्रम्प रियलाइज कि ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट बन सकता है, आई कैन ईजिली लाइक यू नो ये पूरी ऑडियंस को मैं अपने साथ ले सकता हूँ। एंड जो ऑडियंस है भी क्रिप्टो की, दे आर प्राइमरली लेफ्ट पीपल, लेफ्ट इज डेमोक्रेट्स,
बट दिस वन इशू कैन टर्न देम इनटू रिपब्लिकन्स. तो ट्रम्प रियलाइज कि ये वो स्विंग वोटर्स हो गए जो डेमोक्रेट से निकल के रिपब्लिकन्स में आ जाएंगे, एंड ही वेंट ऑल आउट. उसने तो डोनेशंस लेना भी शुरू कर दिया क्रिप्टो में. हाँ, but how's this? Isn't this crazy? मतलब donations anyways are shady in nature. And the point is, he's not trying to actually take donations. It's a talking point. Talking point, right? yeah. You say that I am accepting donations in cryptocurrency. You look like a crypto-friendly like government, right? And suddenly, see, there are not enough issues in US that people can really go and support, right? Most of the things are out of the control of the government. Inflation they can't control. Debt they can't control, right? Most of the things that are happening in US are going like it's all going down the drain. So they need something to talk about, right? And crypto becomes a nice talking point, right? So I to see it as like it every election sees a new tech Right. come center stage. Like last election में क्या हुआ, social media was center stage कि social media की वजह से elections rig हो रहे हैं, Twitter पे वो करो, like Facebook पे वो करो, like controls लाओ. This time it's going to be around crypto. And अगेन लाइक ये जो स्विंग वोटर्स वाला थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट. यूएस में बहुत फिक्स स्टेट्स होते हैं, तो यूएस में स्टेट के लाइक यू हैव टू विन स्टेट्स to win the presidency. Yeah. But see, sorry, just like interrupting one point here. We are talking about like the electoral base right now, ठीक है? But let's talk about Congress. The House is still dominated by Democrats. It's Senate where it's the opposite. But Democrat politicians voting in favor of a bill, that is like, isn't that crazier They than have broken party lines. मतलब like उनकी पार्टी ने बोला कि आप बहुत सारे लोग जो है majority were against the bill, but they said कि if we vote against the bill we'll lose our voters. मतलब जो हमें जिन्होंने वोट किया है वो like they won't be supportive of it. So you're saying the adoption of crypto in US is that impenetrated? It is. It is. That it has reached the years. 50 million का नंबर है, like 5 करोड़ लोगों के पास US में, like they have some kind of crypto exposure. Out of 35 crore. Out of 35 crore. which So is 1 a out big- of 7. 1 out of 7. And many more know about it, bro. See, these are the people who have adopted it. But I don't think there will be very few people who have not heard about Bitcoin or not heard about crypto or not heard somebody in their family investing in crypto. It's going that mainstream zone now. It's not that fringe niche that It's not the, but isn't it the Snapchat Janta? No, the Snapchat Janta. So, hey, look, guys. It's the other way around, bro. It's literally all. If you look at so many declarations that happened, almost 1,000 institutions at large scale banks have invested in Bitcoin in the last 3 months. This was also like one of the big revelations. अभी Yeah. न्यूज़ को अगर हम कवर करें कि क्या हुआ जब से हमने लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया, तो जो बिटकॉइन ETF था उसके वो फाइलिंग्स आई कि किन किन ने ETF खरीदा है, लाइक हु ऑल बॉट इट. सो दैट कम्स आउट आफ्टर एवरी क्वार्टर. तो फर्स्ट क्वार्टर में JP मॉर्गन स्टैनली, इन सब ने भर भर के like hundreds of millions worth of BTC they have bought for their clients. मिलेनियम ने खरीदा है, एक बहुत बड़ा हेज फंड है. बेस्ट था एक स्टेट पेंशन फंड, विस्कॉन्सिन करके एक स्टेट है, उसके स्टेट पेंशन फंड ने 100 बिलियन से ऊपर बिटकॉइन But Parth, I'm sorry, like when the financial crisis happened 2008, it was actually these pension funds which suffered the maximum casualty. So- Right. And like just because this adoption is there, like I'm just playing the devil's advocate. तुम कैसे बोल सकते हो कि ठीक है 1 out of 7 people in US. नहीं, मैंने देखा है कि इन सब चीजों में यू बिकम डेविल्स एडवोकेट, बट ट्रेडिंग के मामले में यू टेक लाइक मैक्सिमम रिस्क. बट ठीक है, आई टोटली गेट योर पॉइंट. लाइक At least I'm able to make it to the show next day, no? Unlike someone. पेंशन फंड शुड प्ले इट सेफ. दैट इज व्हाई दिस विल नॉट बी कि लेट्स से उनके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 20 रुपए नहीं लगा देंगे वो BTC में, दे विल पुट प्रोबब्ली 1 रुपी. उससे होगा क्या, वो 1 रुपया इट कैन गिव देम वेरी हाई रिटर्न्स कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो, एंड रिस्क भी कम रहेगा. सो इसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बोलते हैं. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, एंड पेंशन फंड्स ये कर सकते हैं कि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो छोटे छोटे एक्सपोजर नए नए एसेट क्लास में ले सकते हैं. सो आई वुड से कि दिस कैन बी अ गुड स्टार्ट. और पेंशन फंड्स देखेंगे अरे इनका रिटर्न तो बढ़िया आ रहा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल एक्सपोजर टू BTC, दे विल ऑल्सो स्टार्ट परचेजिंग मोर. Okay, and then see, BTC is still digital gold, correct? Now ETF for digital gold, consider digital gold. Okay. quote Let me- unquote. There is a compliance team sitting here somewhere who will ask me. The moniker for Bitcoin is digital gold. Okay. Moniker नया वर्ड सीखा मैंने. Guys, हम आपको क्रिप्टो के साथ इंग्लिश भी सिखाते हैं, ठीक है? सुबह सुबह इंग्लिश लेसन्स फॉर ऑल द GMAT enthusiasts, GRE. Please take notes. No, but ETF for digital gold makes sense. ETF for ETH. So ETF is a mechanism for investing. ठीक है? You can create an ETF. There are so many ETFs of so many assets in the world, right? It's not that
गोल्ड के लिए ETF सेंस बनाता है, नैस्डैक के लिए भी तो ETFs है, इंडेक्स फंड्स, बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, राइट. व्हाट दिस विल डू इज allow more people to accept, right, allow more people to invest in a security like ETH or whatever, commodity like ETH. We'll come to that topic. But that was unavailable for all these institutions before, right? नहीं, आई वुड से मोर देन अनअवेलेबल, इट वाज टफ. Tough, yeah. मतलब अगर आपको ईथ खरीदना है तो आप क्या करोगे? आप या तो कोई एक्सचेंज पे अकाउंट खोलोगे, या तो अपना एक मेटामास्क वॉलेट बनाओगे, फिर अपनी प्राइवेट की मैनेज करोगे. बहुत सारे इसमें लाइक प्रॉब्लम्स हैं लाइक वैसे खरीदने में. When you are investing 100 million, you don't want all of this. Like you want a stable company backing, like a BlackRock. भाई देखो यार, स्पष्ट भाषा में बात करते हैं, ठीक है. तुम ETF जब बोलते हो तो दुनिया को पता नहीं ETF है क्या, बट तुम ETF के साथ कोई नाम जोड़ दोगे, नास्डैक, ठीक है, चाहे सोना, उस बंदे को पता चलेगा कि निफ्टी, उस बंदे को पता है भाई कम से कम टीवी पे तो मैं निफ्टी वर्ड देखता हूँ. निफ्टी का मतलब है इन्फोसिस. इन्फोसिस कुछ ऊपर नीचे गया, मेरा ETF कुछ ऊपर नीचे गया. बेसिकली जो उसका डेरिवेटिव है और द एसेट टू विच द फंड इज लिंक्ड टू एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, समवन नोज अबाउट इट. यहाँ तुम ईथ बोल रहे हो यार, ठीक है, ईथ एक मेन स्ट्रीम क्रिप्टो है जिसपे बाकी क्रिप्टोज बने हुए हैं. अगर मैं स्पष्ट भाषा में बोलूँ किसी को, वो बोलेगा भाई मुझे क्रिप्टो ही नहीं समझ में आता, तो मैं इसका मेन स्ट्रीम क्रिप्टो बोल के मुझे बोलो एक्सचेंज ट्रेडेड, इसका मैं क्या करूँ, लड्डू बांटू. तो मैं ईथ को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. आई थिंक मतलब क्योंकि जैसे अब ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया, बिटकॉइन थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आएगा कि उसकी फिक्स सप्लाई है, इसलिए उसको गोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं. ईथ को मैं कंपेयर करूँगा डिजिटल ऑयल से. जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल से अपनी इकोनॉमी चलती है. कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वर्ल्ड में, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी यूजिंग पेट्रोल. मुझे लगा ये यहाँ तो प्याज से चलती है इकोनॉमी, प्याज टमाटर. बट प्याज भी इधर उधर करने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए ना. स्मार्ट वैसे स्मार्ट. मुझे इतना अच्छा लगता है जिस तरह तुम ना L2 L3 एनालिसिस में चले जाते हो. प्याज खाली सुपरफिशियल मूवमेंट है, चलता कैसे है? पेट्रोल से. पेट्रोल से. सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो सब एनर्जी की वजह से चल रहा है, पेट्रोल की वजह से. तो डिजिटल इकोनॉमी में कुछ भी आपको चलाना है तो वो चलेगा ट्रांजैक्शंस के थ्रू. तो इथेरियम इज अ नेटवर्क, ईथ इज द एसेट. ये समझे कि अरे मतलब इथेरियम जो है वो नेटवर्क है और उसके ऊपर एक एसेट जो है वो ईथ है. उस नेटवर्क पे कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए मुझे कुछ गैस फीस देनी पड़ती है. जैसे कोई भी मेरे को गैस मतलब पेट्रोलियम, गैस मतलब पेट्रोलियम, वही ईथ यूज होती है गैस फी पे करने के लिए. तो जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतना ज्यादा ईथ यूज होगा, ईथ का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा. बट इसमें तुम्हारा अंडरलाइंग अजम्पशन यही है ना कि ये जो इकोसिस्टम है, क्रिप्टो का इकोसिस्टम है, इस नेटवर्क को चलाने के लिए ईथ चाहिए. और इस नेटवर्क पे क्या बन रहा है? इस नेटवर्क पे बन रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, डैप्स. अच्छा. अब मतलब व्हाट वी ड्रॉ इज कि हमारे पास iOS है, हमारे पास एंड्रॉयड है, इसके ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर एप्स बनते हैं. इथेरियम में क्या कर रहा है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड एक, थिंक ऑफ इट एज एन iOS, मतलब इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलते भी है EVM, इथेरियम वर्चुअल मशीन. उसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बना सकते हो. तो जैसे एप्पल ने बंद कर दिए थे बहुत सारे एप्स कि हमारे से हटा दो, हम एप्पल, ऐसा कभी नहीं होगा. अगर इथेरियम पे कोई आपने कोई डैप बनाया, इट विल स्टे ऑन द ब्लॉकचेन. या बट ये तो वही बात होगी ना, लिनक्स वर्सेस तुम्हारा. एग्जैक्टली वही बात है. बट कितनी अडॉप्शन है लिनक्स की? अभी नहीं है, मतलब बट लिनक्स इज 1990s की, if I'm not mistaken, but it's an still open going source. on. still going on. ऐसा नहीं है, It's going on with people who are aficionados, Right. मतलब So cliched ETH is also audience. like that. See, there are, why is Solana there in the ecosystem? भाई सुलाना तो मुझे इसलिए ETH पता solved all है कि problems. भाई देखो फ्रैंकली बताऊं, मुझे सुलाना लगता है कि मुझे नहीं पता क्या है, बट 980% वो तो देखो ईद भी नहीं पता ब्रो क्या है. भाई सोलाना भी नहीं मैं ये पता. बता कोई भाई मैं तो नहीं. ऑडियंस के लिए ब्रो पूछो, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है ब्रो. मैं एक ही कंपनी में काम करता हूं, मुझे पता है. नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ऐसे समझो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. लिनक्स इज ईथ. Yeah. तो और कोई जो बहुत पॉपुलर OS हो वो है सोलाना. सोलाना इज ट्राइंग टू बिल्ड एप्स जो बहुत सारे कंज्यूमर्स. ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, राइट. इथेरियम इज मोर tech heavy versus Solana is more consumer heavy. Then why did US decided to chase ETH and not Solana as ETF? So basically ETH came before, right? ETH is more matured as an ecosystem. It's more Solana का तो decentralized. नेटवर्क बंद हो जाता है. Right. Solana हर एक साल में 2 बार बंद होता है, ठीक है. So भाई एक चीज बताओ, यहाँ सरकार की वेबसाइट महीने में 2 बार कभी भी बंद हो जाती है, बस सरकार की वेबसाइट भी तो बेस्ट है ना. बिल्कुल बेस्ट. हाँ ओके चलो. मैं तो बेस्ट ही मानता हूँ. हम तो बेस्ट मानते हैं. कौन है, मतलब बंद होने से क्या होता है, मतलब यार क्वालिटी ऑफ. Let's go back to less controversial topics like भाई crypto. गूगल क्लोज हो गया था ब्रो, 1 घंटे के लिए उसका आधे घंटे की आउटेज हो गई थी हाँ, इंडिया तो में. ये चीजें जो है ये
दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, क्योंकि फिर उसके बाद लाइक यू नो सोलाना का, इसलिए सोलाना का ETF आना टफ है क्योंकि सोलाना बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एक नेटवर्क है, जैसे इथेरियम बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है, लाइक नंबर ऑफ नोड्स जो इथेरियम रन कर रही होंगी वो लाखों में होंगी, I think it's 800K or something. Right? वर्सेस सोलाना के लाइक लिटरली 100 से कम nodes। बट जो मुझे ये पता है, जो ईथ प्रॉमिस करता था ट्रांजैक्शन स्पीड, वो तो मुझे लगता है एलॉन मस्क उससे पहले मार्स में रॉकेट भेज देगा कि मैं ऐसे देखूंगा। लाइक वीजा मास्टर कार्ड जैसे भी हो काम कर रहे हैं ना, चाहे कितनी भी। Think of it this way. It's the demand which is driving the fee side. Right? It's But demand fueled by what? An actual demand or a speculative demand? there is no speculative demand on transactions. You will not do UPI for speculation. भाई जब तुमने अभी सिगरेट और जब पेप्सी खरीदते हो पनवाड़ी से, तुम कैसे पैसे देते हो? ईद से देते हो। I'm saying ETH से नहीं देते हो, but ETH पे भी similar transactions are happening. But when and where? It's happening already. Where? अरे नॉट इन योर इकोसिस्टम, बट अभी जैसे ये जब बिटकॉइन पिज्जा डे था तो कॉइनबेस ने ये पूरा प्रोग्राम निकाला कि पे फॉर योर पिज्जा यूजिंग USDC, मतलब आप जाओ स्कैन करो USDC में पे कर दो, विच इज अ स्टेबल कॉइन, और वो एकदम इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे थे क्योंकि वो सोलाना पे थे, सही क्योंकि बात। सोलाना इज लाइक द फास्टर वो। एक मिनट गाइस, BTC पिज्जा डे हम 22 मई को मनाते हैं। जब एक बंदे ने $700 मिलियन के 2 पिज्जा खरीदे, तो आपको लगता है अगर आपकी लाइफ खराब जा रही है और आप गधे हो तो आप समझ सकते हो। नहीं बट इन रेट्रोस्पेक्ट एवरीथिंग सीम्स रोजियर। मेरे हिसाब से गधा तो नहीं बोलूंगा मैं उसे, मतलब बेसिकली एवरीथिंग सीम्स रोजियर इन रेट्रोस्पेक्ट। तो आज की डेट में उस डे को सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इट वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब कोई रियल वर्ल्ड चीज के लिए बिटकॉइन में पे किया था, तब आई थिंक वैल्यू थी $40, वो 10,000 बिटकॉइन की, और उस बंदे के पास अपेरेंटली बहुत और भी बिटकॉइन थे, ऐसा नहीं कि उसने अपने सारे बिटकॉइन पिज्जा में लगा दिए। और Suddenly Shaurya like अगर ये तो गलत हो गया। ये क्या हुआ? उसके बाद इतने बिटकॉइन आए कहाँ से? ये क्या? पहले पता है आपको कैसे मिलता था? जब बिटकॉइन शुरू हुआ था, लिटरली देयर वर फॉसेट साइट्स की जो एक क्लिक करो और आपको बिटकॉइन मिलता था, एक क्लिक करो वो बिटकॉइन मिलता था, ऐसे ऐसे टाइम था। बाहर तुम क्या किस नाम के नाउस एक्सपर्ट हो अगर तुम ये चीजें अभी नहीं बताते पहले? But अपन लोग भी तो नहीं मिले थे 2010 में। तो भाई 2010 में तो मैं तो कॉलेज में था यार, कैसे कैसे पता और था? तू भी कॉलेज में था ब्रो। आई एम श्योर मैं भी कॉलेज में था। क्या मजे आ जाते हैं यार। गोइंग बैक टू दैट पॉइंट कि वो बंदे ने तो चलो उसको तुम गधा तो नहीं बोलूंगा मैं, गधा नहीं, मैं बस बोला था रोज रेट्रोस्पेक्ट में सब कुछ रोजिया लगता है। बट थिंक ऑफ द गाय who was on the other side of the transaction. एक छोटा डेवलपर था यूके में, like under 18 years of age, who got 10,000 Bitcoin for giving those 2 pizzas. उसकी सोचो क्या मजे आए होंगे लाइफ। उसने हॉडल करा या नॉन हॉडल करा? ये नहीं पता। देखा गाइस, इसलिए हमेशा हॉडल करो, जो लाइफ में मिल जाए पकड़ लो उसको। पकड़ लो और छोड़ो मत। Yeah, that's what Shaurya's philosophy is in dating as well, guys. Guys, come on dude, personal, professional. 1,000 people will now know what your dating is. 1,000 plus. Let's go back to night football. No, night football. Yeah, he had actually gone for night football. नहीं guys, so I completely understand, yeah, but Well, I think we deviate a lot. ETH ETF का अगर हम बात करेंगे तो ETH is the second biggest asset, सबसे ज़्यादा लंबा रनिंग नेटवर्क है, second biggest asset after BTC. आफ्टर BTC, एंड बेसिकली इसके ETF ऐसे ही नहीं हो जाता, ETF के लिए किसी को अप्लाई करना पड़ता है, तो ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये सब बड़े इंस्टीट्यूट्स ने ETH के ETF के लिए अप्लाई किया है, किसी ने अभी सोलाना या डोज या इन सब के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है। मे बी जब वो करेंगे तब SEC विल हैव टू टेक अ कॉल कि इनका ETF भी अलाउ करें या नहीं। तो ETH के ETF की डेडलाइन थी कल रात को 23 में, वेयर बेसिकली यू हैव टू डिसाइड कि अप्रूवल देना है या नहीं देना है, एंड क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले इतना उथल पुथल हुई है US पॉलिटिक्स में, SEC sort of bored down Yeah. कि अप्रूव कर दे रहे हैं Very ट्रेडिंग के लिए। surprising. Yeah, no, bro, there's no such thing as coincidence. Learned it from Kung Fu Panda. Sure. और ऐसा तो है नहीं कि एक हफ्ते का अपहीवल देख के SEC ने अपना डिसीजन चेंज करोगे। Such No, but decisions are it did taken happen, long. bro. Like last week, the odds of getting like a spot ETF 25%. approval for ETH was like 25, less than 25, right? And in 1 week, it's approved. Why do you think ETH was at $3,000 till last week and suddenly it pumped up 18%? One day it pumped up 18% because everybody was surprised. Everyone was He was taken taken back. off guard. कि Like ये क्या हो literally गया? एक ट्वीट के एक वो ट्विटर एक्स पे एक ट्वीट डाला था, एंड ब्लूमबर्ग के 2 एनालिस्ट हैं, मतलब आई थिंक उनका लिंक हम मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज फॉलो देम। ओ यार, ये तो भूल ही गया भाई, guys. Please subscribe. Sorry. ये जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं, दे आर द बेस्ट टू फॉलो फॉर एनी ETF अपडेट्स। Right. वो ETF के एक्सपर्ट्स हैं,
कि ETF की दुनिया में क्या चल रहा है, उन्होंने अपने ट्वीट में चेंज किया, नाउ द अप्रूवल चांसेस आर 75% फ्रॉम लेस देन 25%. And that drove That drove each price 18%. to 10% भाग गया था, literally like आधे घंटे के अंदर. 18% in that one day it went up. And it's ETH is not a 18% से उसने ETH is not a small asset. ETH is 300-400 billion dollar asset. तो वो जब मूव कर रहा है 10%, मतलब 40 बिलियन मार्केट कैप बढ़ रहा है उसका एकदम से आधे घंटे के अंदर. और इन एनालिस्ट को कितना बोनस मिला है चीज नहीं, वो ब्लूमबर्ग के लिए काम करते हैं, वो ऑलरेडी आई थिंक काफी कमाते हैं. right. And Ethereum is not. See, Ethereum again. Why did Ethereum get a ETF approval and probably Solana might find it difficult because there is no central party promoting Ethereum so much, right? Like ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बीटीसी का कौन सा है BTC का भी कोई नहीं, कोई इसलिए नहीं तो है ना, तभी BTC तो का BTC अप्रूवल approval. was तो पॉसिबल. इसी पॉइंट से रिलेटेड है वो जो बिल दूसरा पास हुआ, Right. जो फिट, उसका नाम है फिट 21. Fitbit का भाई नॉट लाइक फॉर फिटनेस बट इट्स फॉर लाइक ऐसे कुछ फाइनेंशियल इनोवेशन टेक्नोलॉजी करके पूरा है. तो उसमें बेसिकली ये बात बोली गई है कि हाउ डू यू डिफाइन सिक्योरिटी, हाउ डू यू डिफाइन कमोडिटी फॉर डिजिटल एसेट्स, VDAs और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. हाँ, So VDA तो पूरा है, like everything is a VDA, ठीक है. Within that तुमको कुछ कुछ तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जैसे बिटकॉइन बात कर लेते हैं. बिटकॉइन इथेरियम लेते हैं बेस्ट एग्जांपल. बिटकॉइन इथेरियम So Bitcoin is considered a commodity. Why? Because Satoshi ने बनाया. जो And he US walked- गवर्नमेंट है No, no. US government नहीं है यार. Why would US government make Bitcoin यार? मतलब it's just literally. मतलब दो चीज कंफर्म हो गई, यूएस गवर्नमेंट नहीं है और शौर्य नहीं है. शौर्य नहीं है. और तालिबान नहीं है वो पता नहीं. वो पता नहीं. Sorry guys. वो पता नहीं. कट 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 Cut. Yes. ये edit हो जाएगा. ठीक है. Please. But coming back to the commodity versus securities point, right? Like gold. Nobody is backing, like trying to promote gold, right? There's a gold foundation and all that, but गोल्ड फाउंडेशन yeah, there is is, but ब्लडी गोल्ड फाउंडेशन आल्सो there is a foundation for everything. Wow. There will be a Shaurya foundation also if you become famous. Don't worry. बड़ी दे ऑलरेडी is like how do you think he's getting these roles? yeah a fan following ting coming back. Important points, guys. what's something more important than me promoting me on a show not about Oh me my God. Why did we bring him? bro I brought you only He called was us, man. late He called us and come आ जाओ. मैंने बोला ब्रो सेकंड एपिसोड में ऐसा ना होना कि दो लोग गायब हो जाए हाँ बट Coming back. So basically gold को जैसे Infosys या going back to your favorite example of Infosys या Reliance, right? There is a board which is trying to ensure that everything in Infosys this is company running, is working well. Reliance right? is earning. And that makes like there's a conflict of interest for them that they'll always try to promote their brand, right? There's no such board or company or entity trying to do that for Bitcoin. It's the people who do it, right? And that's why it's a decentralized network. डिसेंट्रलाइजेशन इज द मेन Right. पॉइंट. और उस बिल में भी यही बोला गया है कि अगर कोई सिक्योरिटी कैसे होती है जिसको कुछ फिट 21 की बात फिट करें 21 Yeah. जो कोई सेंट्रल अथॉरिटी अगर उसके एसेट प्राइस को Manipulate मैनिपुलेट कर कर सकती है. मतलब रिलायंस अपने लेट्स से डिविडेंड बढ़ा दे तो उसका प्राइस गिर जाएगा, वैसा कुछ कर सकते हैं वो. वर्सेस कमोडिटी में कोई सेंट्रल पार्टी कुछ उसको उसके प्राइस को इफेक्ट क्या बट एक चीज बताओ ऑयल इज अ कमोडिटी Yeah. हाँ, तो Gold is a उसमें commodity, मैं आपको oil बता is a रहा हूँ, commodity. बेसिकली बट ओपेक कंट्रोल्स ऑयल controls oil, that's totally agreed, but if other countries find reserves they will be able to balance it out. इसमें मैं मतलब सेंट्रलाइजेशन का पॉइंट डिजिटल एसेट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन को उन्होंने डिफाइन भी किया है इसमें फिट 21 बिल में कि 20% से ज़्यादा अगर किसी एक पार्टी के पास है तो वो उसका प्राइस को मूव कर सकता है. बिटकॉइन के केस में देयर इज नो पार्टी विच हैज इवन मोर देन 1% ऑफ टोटल सप्लाई की कोई एक वॉलेट के पास हो. बट यार एक चीज बताओ मेरे पास 10 प्राइवेट वॉलेट है ठीक है वही जो पता नहीं 70 कितना हैश 64 हैश का ना ए बी सी ब्ला ब्ला उसमें ब्ला तुमने अलग अलग में रख के और मेरे पास अलग अलग रखे हैं बट इतनी ट्रैकिंग अवेलेबल है आज की डेट बट तुम्हें नहीं पता ना कि ये 100 वॉलेट गो बैक टू मी वही बता रहा हूँ शौर्य, पता है लोगों को लाइक भाई एक मेरा एक मेरी बीवी के नाम पे अरे सब दो मेरे बच्चों के नाम पे तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट को नहीं पता चलता ये सब कि अगर तुम ऐसे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते कि उनको नहीं आइडिया होता. बिटकॉइन में तो इनफैक्ट एवरीथिंग इज ऑन चेन. लाइक आप उसके एनालिसिस टूल्स होते हैं चेन एनालिसिस करके जो यू नो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह. मैं लिटरली एक कैलकाटा में एक मैंने सेशन लिया जिसमें मैंने कैलकाटा पुलिस को समझाया कि कैसे आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैक बिटकॉइन मूवमेंट्स. विद इन लाइक अ वीक दे वर एबल टू ट्रेस 45 BTC
किसी ने चुरा के जो मूव किए थे। तो फॉर देम इट वाज वन ऑफ देयर बिगेस्ट हॉल्स एंड इट हैपेंड इंस्टेंटेनियसली बिकॉज सब कुछ ब्लॉकचेन पे था। तो जो भी लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हम अपने वॉलेट में अलग ले जाएंगे हो जाएंगे, सारे वॉलेट्स टैग हो रहे हैं यूजिंग दीज टूल्स लाइक चेन एनालिसिस, मर्कल साइंस, बहुत सारे like और ये सब डिसेंट्रलाइज्ड मैनर से हो रहे हैं, लाइक द इकोसिस्टम इज सिक्योरिंग इटसेल्फ, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन ही है। और कोई बैड एक्टर होगा तो वो सबको पता चल जाएगा कि ये बैड एक्टर है। तो जैसे अगर कोई वॉलेट अभी भी होता है, हाँ, हम लोग FIU रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है कि कोई सैंक्शनड वॉलेट से ट्रांजैक्शन हो गया तो वी विल फ्लैग इट ऑफ, और हमें तुरंत पता भी चल जाएगा कि ये वॉलेट नॉर्थ कोरिया का हो सकता है, तालिबान का हो सकता है, या जो भी। तो वो सब चीज़ें बिकॉज इट इज़ ऑन ब्लॉकचेन, इट इज़ बिकॉज इट इज़ लाइक यू नो अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू सी, बहुत इजीली ट्रैक हो सकता है। या देख, लेजर है, सोचे किताब है जिसमें सब चीज़ लिखी जा रही है, राइट? बस तुमको सही पन्ना खोलना है, तुमको पता चल जाएगा कब क्या हुआ। मैं खोला था पन्ना, मैं कॉलेज में थे, मैं किताब आधी दुनिया मैं पढ़ाई कर रहा होता तब यहाँ बैठे होते थे क्या? I would have said somewhere nice. क्रिप्टो का पॉडकास्ट है, इससे ज्यादा मैं क्या एरोडाइट पॉडकास्ट उठाऊं? But going back to the point of security, Taliban. नहीं, security and Taliban and security go together, bro. We're not talking about that security. We're talking about the other security. Security, the asset. Yeah, but okay, just one last point I wanted to ask is, मैं मान गया कि प्राइवेट वॉलेट, यार ये क्या नोटिफिकेशन, भाई कुछ तो इज्जत रख लो शो की, क्या पीछे से टिंग टिंग हो रहा है? आई थिंक कोई सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है वो आ रहा हो। People are going crazy. टिंग, प्लीज सब्सक्राइब। या गाइस, जस्ट टेल मी वन थिंग, ठीक है, तुमने बोल दिया 10 प्राइवेट वॉलेट है, ये 10 के 10 मेरे पास है, अज्यूम करो कि मैं इसका घोस्ट ओनर हूँ, मैंने मूवमेंट करी, फ्लैग ऑफ हो जाएगा। पर देखो यार, मूवमेंट करने के लिए भी दुनिया को पकड़ना होगा। मैंने मूवमेंट करके फ्लक्चुएट कर दिया प्राइस, जब तक मैं पकड़ा गया तब तक मैंने कमा भी लिया, बिकॉज ईच जैसे तुमने बोला 40 बिलियन in what 1 hour was moved. Okay, and like who would have lost the most? For example, on a short position, it would be the retail investors. Similarly, in case when it dumps. Not necessarily. No, I'm just saying the counter position guys, the retail investor usually get flushed out. जब भी market extreme होता है, जैसे कल मैं for everyone's sake, Huda and I actually had placed a trade on Phantom, and you can see that candlestick at 8:30 p.m. 8:31 p.m. Kaboom, went down. डाउन हो गया भाई, लगा तुम लोग अब का खेले। भाई एक बंदा आया ही नहीं। I think यही था फुटबॉल इंजीनियरिंग। फुटबॉल ब्रोस को बहुत Phantom इंजरी हुई कल। नहीं, बट ये हाउ डू यू, सिक्योरिटी वैसे कमोडिटी 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट दिस इन अ डिसेंट्रलाइज्ड इज हार्डर टू कैच। It is, but at the end of the day, if you're doing a big transaction and there's a big problem, big fraud, it can be cashed. Like, think of it this way: cash में जो frauds होते हैं, it's the कभी नहीं catch yeah, it's पाएंगे। impossible to catch. So if you look at what drives biggest frauds in the world, it's US dollars. ठीक है, it's not Bitcoin. 100%. It's USD. If you are a criminal, Yeah. you should not be Using transacting in Bitcoin. Bitcoin at all. Bitcoin तो absolutely not. There are like certain other cryptocurrencies like Monero वगैरह, Yeah. जो हम लोग उनसे दूर ही रहते हैं। Like- वो like privacy preserving coins है, उसमें आप वो फिर भी कर सकते हो, but generally सब कुछ होता है कैश में। Like criminals का preferred mode of payment is cash. हमने सारी मूवीज में तो यूएस डॉलर देखे हैं। Exactly. एक मतलब ब्रीफकेस cash लेके exactly. आते हैं। वही है। dollar- In some aspects, the movies are right. हमारा ये Bring जो back. वो प्राइस मूवमेंट का पॉइंट है ईथ का, दिस इज अ वेरी वन ऑफ इवेंट एंड इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ईथ ETF अप्रूव होने से इंस्टीट्यूशनल पैसा आएगा। Yeah. इससे किसी एक बंदे का फायदा नहीं हो रहा होगा उस ट्रेड में। आई डोंट थिंक कि 10 वॉलेट्स ने मिलके वो प्राइस हिलाया है, अचानक से सब लोगों को खरीदना होगा। मतलब जैसे ही तुम्हें पता चला होगा इस न्यूज़ के बारे में, मुझे पता चला होगा, हमने भी अपने अपने भाई मुझे तो लेट ही पता चलता है, जब तक मैं आता हूँ तब तक बस जमीन बैरन हो जाती है, ऐसे भागते भागते आता हूँ। ओए क्रिप्टो में आई थिंक लाइक स्टेइंग, एक तो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहना चाहिए, और लाइक कॉइन गेको वगैरह पे प्राइस अलर्ट्स लगा लो कि जैसे कोई प्राइस लाइक लेट्स से 5% मूव कर गया, देन यू गेट एन नोटिफिकेशन एंड यू कम। मैं तो अखबार पढ़ने वाली जनता में हूँ, सुबह उठ के अखबार पढ़ता हूँ चाय पी के, फिर 24 घंटे सोचता हूँ कि NSE BSE में क्या लगाऊं। ठीक है, ये कॉइन गेको वाले प्राइस अलर्ट तो भाई मुझे समझ में नहीं आते। ठीक है, अखबार का डिजिटल वर्जन फॉर क्रिप्टो कॉइन डेस्क, Yeah. कॉइन डेस्क पढ़ो, उसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन आता है, बस उसको लाइक दिन में सुबह एक बार जैसे अखबार देखते हो वैसे वो 5 मिनट के लिए देख लो। आई थिंक यू विल हैव अ नो हाउ कि क्या क्या चल रहा है क्रिप्टो की दुनिया में, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन इंडस्ट्री है काफ़ी, लाइक न्यूज़ की वजह से लाइक ट्रिगर होता है। ईद का बेस्ट एग्जाम्पल है, एक ट्वीट की वजह से अगर आप
40 बिलियन मार्केट कैप बढ़ सकता है। तो भाई सोचो डैड क्रिप्टो शो में हमने एक चीज बोल दी और मार्केट हिल गया तो इंशाल्लाह someday we'll reach there. someday क्या next day if you do no but guys I think we had a very interesting discussion on US dollars ठीक है एंड रेगुलेशन का ही आई थिंक और थोड़ा हम लोग डिस्कस कर सकते हाँ वही मतलब लाइक देखो जैसे US डॉलर First time it's happening, dude. Like imagine, it's a first, you it's a won't first. expect US government to promote crypto. It's literally anti, like it's exact opposite of what US government wants, right? So it's a amazing thing that इतने important bills pass हो रहे हैं, ठीक है? इतने important चीजें discuss हो रही है. Market में nobody cares because price movement नहीं हो रहा है. But if you're interested in crypto, it's a great time. Like I don't think it's been for better. a person who's been in this space for 5 years now. yeah मैं thanks for talking about me Sure. actually it's longer मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा 5 ही हुआ है अभी, 5 ही हुआ है उसमें इतने मैंने वो देखे हैं लाइक अप्स एंड डाउन्स ऑन द रेगुलेटरी फ्रंट। और बेसिकली जो लास्ट वीक हुआ है 2 बिल पास हुए हैं हाउस में, यूएस हाउस में पास हो गए 2 बिल विच आर सपोर्टिव ऑफ क्रिप्टो। फर्स्ट तो हमने फिट 21 डिस्कस किया, दूसरा बिल है सीबीडीसी के अगेंस्ट। सीबीडीसी यूजर्स जिनको नहीं पता है वो है डिजिटल, ऑलरेडी आ गया इंडिया में, सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी। इसमें सुपर आएगा ना हमारा CBDC stands for Central Yeah, Bank yeah. Digital Currency बेसिकली इंडिया में ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है, ई रूपी करके। आप अपने बैंक का एक ई रूपी वॉलेट It's with ICICI Bank no that's किसी के साथ भी बना सकते हो, कोटक के साथ है मेरा, नहीं पायलट अब काफ़ी सारे बैंक्स कर रहे हैं बट उसका यूजेज नहीं है क्योंकि इंडिया में यूपीआई, लोग बोलते हैं यूपीआई हमारा बेस्ट है। और यूएस में क्या हुआ है कि यूएस बिकॉज इज अ वेरी प्रिवेसी फर्स्ट, इंडिविजुअल के राइट्स और इन सबको बहुत वेटेज देते हैं वो लोग, तो वहाँ पे पॉलिटिशियन से बोला ये तो सर्वेलेंस टूल है, लाइक इफ द गवर्नमेंट नोज हाउ वी आर स्पेंडिंग मनी दे विल गेट टू नो एवरीथिंग। कैश इकोनॉमी इसलिए लाइक बेटर होती है लाइक कोई भी इंडिविजुअल के लिए कि आपका जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी को पता नहीं चल रहा है, प्रिवेसी है। अगर ये डिजिटल हो जाएगा तो गवर्नमेंट को सब पता चल सकता है। चाइना में तो ये हो भी रहा है इनफैक्ट कि चाइना में सीबीडीसी काफी चाइना को तो गुस्सा है कि इतना कम क्यों सर्वेलेंस हो रहा है थोड़ा और वो बेचारे इतने सुबह 7 से 7:15 के बीच में से क्या क्या पता नहीं चला यार मेरे को. ये कैसे ब्लाइंड स्पॉट आ गया बीच में हाँ उस गांव में वो बंदा 10 मिनट के लिए गायब था तो गया कहाँ यार इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है आई रियली होप चाइनीज को हमारी ऑडियंस ना हो ज्यादा बट क्योंकि काफी ऑफेंसिव लेंगे। बट कमिंग बैक तो बेसिकली रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दो बड़ी पार्टीज होती है यूएस में। रिपब्लिकन्स आर वेरी फॉर लेस गवर्नमेंट, कि जितना कम गवर्नमेंट होगी उतना बेटर है, तो उन्होंने ये बिल लाया और वेरी स्मॉल मेजोरिटी फिट 21 तो अच्छा खासा डेमोक्रेट्स ने भी वोट कर दिया कि फिट 21 लाओ, इसमें 3-4 डेमोक्रेट्स ने आई थिंक वोट किया है बट बिल पास हो गया है। तो अब यूएस में डिजिटल डॉलर बनाना विल बी वेरी टफ। यार बट यार चीज बताओ यार, मतलब सिंपल बात है, ईद तुमने बोला डिजिटल ऑयल है, यूएस को तो जब भी ऑयल का नाम सुनाई देता है तो यूएस तो वैसे एक्साइटेड हो जाती है। It has given freedom to so many nations in the world. Yeah, they deserve some democracy. काफी politically charged We are going against every other country except केवल इंडिया India is the best guys. Bro, मतलब that's the best. बैठे इंडिया में अभी हो। No no, but यार jokes apart है, मतलब देखो ईद का मानता हूँ मैं, CBDC का इंडिया और यूएस ने काफी ऑपोजिट स्टैंड लिया है। यहाँ यूएस कर्टेल कर रही है, वहाँ इंडिया बढ़ा रही है। इनफैक्ट अपने आरबीआई गवर्नर मिस्टर दास ने बोला भी दैट ही वांट्स टू पायलट सीबीडीसी ऑन ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस। सो मतलब काफ़ी दिस एंटायर लैंडस्केप ऑफ द इंडियन मार्केट इज क्वाइट इंडिविजुअलिस्टिक एंड इज टेकिंग अ सेपरेट स्टैंड। So how do you would like to compare the two? And the second thing is the big news is that SEBI has also gone against the words, not so called against the words, but has taken a stand opposite, somewhat opposite to RBI, saying that regulation is needed. So what all is happening in the Indian ecosystem, both for CBDC and crypto? So we are in a state of flux. ऐसा नहीं है We कि always are. We are Indians. We are Indians. Or also like because we can't be the first movers in this entire like regulation piece. हम लोग सबसे पहले जाके रेगुलेशन नहीं बना देंगे, हम लोग वेट करेंगे कि और कंट्रीज क्या कर रही हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक डिजिटल ग्लोबल एसेट भी है। मतलब अगर मैं एक कंट्री में कोई रूल्स रेगुलेशन बना दूंगा, हाउ डू आई इम्पोज इट ऑन एन एसेट विच कैन मूव फ्रीली अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसीलिए आई थिंक बहुत ही धीमे धीमे होने वाला है, ये स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होगी। सेबी का जो आपने पॉइंट बोला दैट्स जस्ट अ सजेशन बट वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि आज तक पहले कभी किसी ने ये भी नहीं बोला था कि हम रेगुलेट करेंगे।
तो सेबी ने जो चीज बोली, उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी टोकन्स, ICOs, because they are like securities, they can come under Securities Exchange Board of India, SEBI. तो तुम ये बोल रहे हो कि SEBI is also taking that security versus commodity argument of US. अब एंड उसमें पॉइंट ये है कि इंडिया में कमोडिटी और रेगुलेटर है ही नहीं कोई, सेबी करता है कमोडिटीज रेगुलेट। अच्छा इवन कमोडिटी, हाँ बिकॉज हाँ एक्सचेंज इंडिया में कोई कमोडिटी रेगुलेटर है ही नहीं। तो बेसिकली होगा ये कि कोई भी टोकन जो है उसको सिक्योरिटी डिफाइन करो, कमोडिटी डिफाइन करो, हर चीज का माँ बाप सेबी होना चाहिए। सेबी ने ये बोला है, और सेबी ने बोला है कि आरबीआई की ड्यूटीज होंगी फॉर स्टेबल कॉइन्स जो आर बैक्ड बाय करेंसी, CBDC, ये सब जो है, जो भी करेंसी रिलेटेड चीजें वो आरबीआई के अंडर जाएंगी। Oh, and in terms of legal precedence, it will be an interesting take कि end में किसका word triumphs over other, because RBI is the central bank, but SEBI has the jurisdiction on securities. But this bifurcation काफी अच्छा होगा क्योंकि stable currency which is linked to the fiscal and the monetary health of a nation, वो RBI लेगा. And that was the problem that RBI had, na? अच्छा, RBI was not anti-crypto saying कि we don't like the tech behind it. RBI is worried Blockchain that तो use कर ही रहे हैं वो yeah, they're worried that it might create like the control that RBI has over an economy, ठीक है, monetary policy, fiscal policy, ये सारी चीजों में उनका कंट्रोल चला जाएगा. Hawala is not RBI, guys. Hawala is not under their control. Yeah, that will happen. Yeah. Guys, बट आरबीआई का CBDC स्टैंड इम्पोर्टेंट है। जैसे तुमने बोला कि वो ऑफलाइन पेमेंट्स करना चाहते हैं, उसके अलावा वो करना चाहते हैं टोकनाइजेशन के लिए CBDC को यूज। तो जैसे आज की डेट में तुम्हें गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना है, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है 10 ईयर 20 ईयर, उसका बहुत ही रिटेल का कोई मार्केट नहीं है, लाइक 10 लाख से ऊपर का यू हैव टू मेक। नहीं बट वो भी चेंज हुआ है, सेबी ने उसका भी कम कर दिया क्वांटम। तो उसको अगर वो टोकनाइज कर देंगे तो और कम कर सकते हैं। एंड वो लोग बेसिकली बोलेंगे तुम रुपी से नहीं खरीद पाओगे ये, ओनली विद द ई-रुपी यू विल बी एबल टू बाय द। बट व्हाई, मतलब इसका इंस्टेंट सेटलमेंट, एवरीथिंग विल बी ऑन ब्लॉकचेन। तो अच्छा, मतलब जैसे आज की डेट में T+1 भी इंडिया में बहुत आगे, बाय द वे बाकी कंट्रीज T+2 पे चलती हैं। हाँ वी आर एक्चुअली T+1, इंडिया T+1, T+0 भी ट्राई कर रहे हैं वो लोग कि सेटलमेंट उसी दिन हो जाए। बट ये पायलट चल रहा है, आई थिंक सेबी ने अनाउंसमेंट करी थी। तो ब्लॉकचेन पे अगर ये होगा तो ये इंस्टेंट सेटलमेंट होगा। अच्छा, मतलब मैंने अभी कोई ट्रांजैक्शन किया, ई-रुपी भेजा और मेरे को तुरंत वो सिक्योरिटी मिल गई, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड जो वगैरह जो थी। या बट इजंट इट सरप्राइजिंग, जो मुझे लग रहा है कि यूएस हैज मोर पॉलिटिकल विल पावर टू पुश क्रिप्टो बट लेस बैक एंड सिस्टम्स on at a public infra level, public infra. और इंडिया का ऑपोजिट है, इंडिया's public infra when it comes to payments is actually quite robust. It's better than US. Superior. 100%. Probably the best in the world right now, guys. Yeah. Like, And but our political willpower is not there, so we are losing out on a big opportunity. We have the political willpower as well. Okay? It's just that we, as he said, very important point, right? India is not the first to regulate because it's a global ecosystem. We can't regulate on our own. But if you look at what India did in G20, they took a very, very important stance on regulation for crypto. Not neutral था, pro नहीं कुछ नहीं था, but neutral. उनका था कि बनाओ जो भी रेगुलेशन बनाने सब लोग साथ में बनाओ। अगर एक कोई बनाएगा तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। एंड टू द अदर पॉइंट, लाइक इंडिया में पॉलिटिकल विल पावर, अगेन दिस इज नॉट एन इशू दैट विल इफेक्ट द इलेक्शंस। इसीलिए एवरीथिंग इज अबाउट पॉलिटिक्स, शुरू में बोला था ना, जैसे क्रिप्टो यूएस में मेन हो गया क्योंकि स्विंग वोटर्स जो हैं वो और लेफ्ट से रिपब्लिकन्स की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट को डेमोक्रेट्स को भी डर लग गया कि भाई हमारे this has happened in the last 3 weeks. It's not happened कि बहुत टाइम। But नहीं, but अब इस team the momentum will keep on gaining, no? मतलब keep on taking steam. नवंबर तक तो guys कर लो invest. ट्रम्प के सारे कॉइंस खरीदो। We can't say that, guys. Sorry, investment advice. अभी वो अभी सुपर चला देना। Yeah, this is not an investment advice, and Shaurya is not an expert in investing, guys. You look back to the trades he has talked about from his last night. भाई जो चीज गिरती है, Phantom 831. bro 8:31 PM में गिरी तो 9:30 बजे ऊपर भी जाएगी। हाँ बिल्कुल। बैटमैन नहीं देखी तुमने? हाँ, तब तक लिक्विडेट हो चुके होंगे तुम, वो बताना कोई भूल चुका है। अभिषेक सब नहीं बताना होता, बहुत गंदा लिक्विडेट हुआ मैं कल रात, बहुत ही खराब था। नहीं बट यार ये काफी अच्छा है, मतलब बट यू आर राइट यार, people are saying कि climate change as a topic has not been spoken about in elections. इंडियन इलेक्शन में तो जीरो कहाँ, कोई भी बात कर रहा है क्लाइमेट के बारे में, कुछ नहीं ना। क्लाइमेट भी नहीं क्यों करेंगे? हाँ तो क्रिप्टो तो बहुत बात है यार, पहला सी तो क्लाइमेट चेंज का आना चाहिए, उसमें तो 2 सीज भी है। और हम लोग इतना इफेक्ट भी होता है उससे, लाइक डायरेक्टली इतना इफेक्ट हो रहा है, लाइक गर्मी की वजह से दुनिया वोट करने नहीं जा रही और वो नहीं मैनिफेस्टो में। See, India में topics are because the people have
there's a large population. We probably come in the top 1%, 5% of the population. So our issues are different. It's very first world problems. Like crypto is a very first world problem. या बट यार इंटरेस्टिंगली इंडिया की जो अडॉप्शन रिपोर्ट आई थी इट्स नॉट द टॉप 1% जो क्रिप्टो करे सरप्राइजिंगली जो रैक्स टू रिचेस में बिलीव करते हैं और ओवरनाइट कमाने में तो हो क्या रहा है जो इंडिया का लोअर मिडिल क्लास बकेट भी है वहाँ भी अडॉप्शन उतनी स्ट्रांग है जितनी टॉप क्लास में तो इट्स परमिएटेड होमोजेनियसली अक्रॉस सोसाइटी It's not big enough to be an election issue. इलेक्शन इशू नहीं होगा बट क्रिप्टो इज अ मींस कि इफ यू हैव टू गेट दैट रैक्स टू रिचेस स्टोरी दिस इज योर बेस्ट बेट इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अनियंस आल्सो ब्रो अनियंस मतलब अगर आप फार्मर है तो कर सकते हैं नहीं तो तुमको प्याज से क्या प्रॉब्लम है अब मैं जैन रोना आता है रोना. नहीं यार मैं चतुर्वेदी हूँ बट मेरे भी घर पे नहीं बनता प्याज दैट्स ट्रू बट सॉरी अपन डिविएट कर गए कुछ तो और बात कर रहे थे ट्रम्प हाँ ट्रम्प का चलो एक काम करते हैं गाइस हमने ये डिस्कशन और चर्चा शुरू करी डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पे ठीक है डोनाल्ड ट्रम्प इज अ ग्रेट विजनरी उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड हिलाई पॉलिटिक्स वर्ल्ड हिला रहे हैं Crypto aside, I'm surprised that Donald Trump is so close to becoming a president again. when a lawsuit is against him how I can't even mention the reason of that lawsuit on it's camera like, yeah, let's not go there. But नाइट फुटबॉल ही वाज प्लेइंग नाइट फुटबॉल Night football. he got caught but but at least he has the money to hush hush बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प से हमने शुरू किया था कि उसके एनएफटीज का जो मीटिंग हुई उसकी वजह से सब कुछ लाइक यू नो दैट किक्ड एवरीथिंग इन मोशन डोनाल्ड ट्रम्प के मीम कॉइन्स आर ट्रेडिंग लाइक क्रेजी मतलब अगर किसी को देखना है so yeah guys that brings to our last segment meme coins any coins our take on coins out there in the world meme coins say, I think one thing we should definitely talk about, which is Pepe. Okay. no Pepe And I'm not needs a- shilling Pepe on this podcast because I own Yes. some Pepe in my portfolio. Okay. bro But- Pepe has this entire season of episodes ठीक No, है? but see, the one point is like this ETH ETF like approval can lead to run in all the altcoins. The ETH is like the Nifty of altcoins. ऐसा सोच ले. It's the biggest altcoin out there. If ETH starts moving, and it has not performed well for almost last 1.5 years. Okay. And that's why BTC versus all altcoin like BTC has outperformed. मार्केट डोमिनेंस बीटीसी का बढ़ता चला बढ़ता गया and BTC has outperformed, right? This is one of the biggest push that ecosystem and all altcoins could have gotten, right? And Pepe, meme coins, all these are based on ETH. Like the oil, if the ecosystem goes up, everything Onions goes also up. go up. Onions also go up. Everything goes up. ऑयल वेरी गुड यार दिस इज गुड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो अनियन के बढ़ाने ही पड़ेंगे कैसे करोगे टमाटर, and प्याज, बहुत ही धनिया। हुआ है कि पेपे इज अनियन Yeah. ईथ इज Pepe is the onion. Pepe धनिया जो मुफ्त की मिलती है सब्जी खरीद के बट एकदम से वो बंदा मिलती है बोलता है 5 रुपए की धनिया धनिया के कौन पैसे देते हैं ऐसे ही होगा पेपे के ऐसे ही पैसे बढ़ रहे हैं and ये काफी अच्छा बना दिया यार Yeah, वेरी गुड yeah. यार वेरी गुड पेपे इज धनिया डोज इज प्याज बट व्हाट यू हैव टू लुक आउट फॉर इज मागा मागा एंड बोडन ये दो मीम कॉइन्स हैं जो ट्रम्प सपोर्टर्स पंप करते हैं फुल मागा और बोर्डन मागा इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विच इज ट्रम्प का यू नो क्या बोलते हैं जुल्मा जैसे हमारा है आपकी बार 400 पार जैसे वहाँ पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड दूसरा बोर्डन तो इज अ लाइक टेक ऑन जो बाइडेन कैसे बोर्डन इतना बुढ़ापा लाइक सिल्लू बॉय हाँ सिल्लू बॉय बोर्डन तो उसमें ये भी होता है कि जिम अगर जो बाइडेन कुछ फंबल करता है या कुछ लाइक गड़बड़ कर देता है तो उसमें भी pump। उसमें पंप हो जाता है बोर्डन टोकन दुनिया इतनी घटिया है यार मतलब बेचारा व्हाइट हाउस में भाई अपना अच्छी तरह से ही इज गिविंग हिज टेक ऑन समथिंग मेयर फंबल मैनर पीपल एक्सप्लॉइटिंग दैट बट पीपल आर लाइक दैट ओनली अरे मतलब प्रॉब्ली यू कैन कट इट आउट लेटर बट लाइक ऐसे वॉर वगैरह भी शुरू होती है उसके बाद उसके टोकन्स आ जाते हैं मीम टोकन और वो पंप होने लगते हैं मतलब मीम कॉइन्स का यही है One crazy world of meme coins, right? So- But there is some sanity in that also if you look very closely, right? So I had to look very closely at you, bro, because the way you're camouflaged with the couch, you know. Oh, yeah. I am you like could not Pepe. have picked up a Pepe, better Pepe. shirt. काफी पेपे शिलिंग हो गया काफी Pepe shilling हो गई है. Yeah, पेपे धनिया है Yeah, Pepe Dhania. With Dhania in the news, okay, and with elections taking this entire forefront,
and lot of positive news and regulations. Lots of positives. I think there's an exciting couple of months to see and to witness. तो अब नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर है जब ईथ ETF की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद कैसे इन्फ्लोज आते हैं जैसे बिटकॉइन जब बिटकॉइन का ETF आया था तुरंत वो गिरा था थोड़ा लाइक तुमने मेरे को डांटा भी था इस पे कि इसमें ऊपर क्यों नहीं गया ये वो बट उसके बाद जब वो गया ऊपर तब आई तब थिंक तक तो मैं लिक्विडेट हो गया था. बट बेसिकली ऐसे ही कुछ हो सकता है कि शुरू में थोड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी उसके बाद इन्फ्लोज जब कॉन्स्टेंटली आने लगेंगे तब ईथ का प्राइस ऊपर जा सकता है. ईथ का बाय द वे सप्लाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बिटकॉइन का सप्लाई जैसे फिक्स्ड है Right. ईथ का कई बार ऐसा हो सकता है कि वो डिफ्लेशन में भी चला जाए. अगर डिमांड बढ़ जाती है ज़्यादा तो नया ईथ जो प्रोड्यूस हो रहा था उससे ज़्यादा बर्न होता है तो सप्लाई कम होने लगती है उसकी. तो अगर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी ईथ ETF की वजह से वी कैन बी इन एक्सप्लोसिव प्राइस ग्रोथ. This banana zone. क्यों छापना शुरू फिर US डॉलर की तरह. फिर धनिया भी बढ़ेगा धनिया भी बढ़ेगा. धनिया भी बढ़ेगा. Bro, जिस दिन मैंने डबल डिजिट पे कर दिया ना धनिया के बाय गॉड. बट मुझे लग रहा है जिस तरह ईद बढ़ने वाले ना ऐसा ना हो कि हुड्डा अगले एपिसोड में आ जाए गोल्ड चेन पहन के इतना कमा के हुड्डा लहरी. हुड्डा लहरी. No, guys, great to have both of you and had an amazing talk about this entire piece. Thank you for अरे thank you for coming guys. Thank you for making it to the show. अब तो मुझे thank you बोलना पड़ेगा लोगों को. अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कितने लोग बचते हैं. शौर्य के सॉरी सुड्डा के व्हाटएवर एब्सेंस के लिए उसकी कप अभी भी रखी हुई है. We hope श्रद्धांजलि में श्रद्धांजलि we hope we can see him also on the couch next time. I think he's busy trading and he'll have a lot of great insights in our next show. Chalo guys, this is from us and Dhanya Yes. and take care. Bye. Bye bye. Cheers guys. Thank you. Ding. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.